The war of words is escalating after former Union Minister Salman Khurshid's niece Maryam Alam Khan had sparked a row over that vote jihad statement BJP has hit out at her. And we have a breaking news coming in. They have slammed the so-called IN. All right, we have Maryam Alam Khan on the phone line with us. Afternoon, ma'am. Thank you for joining us. First of all, could you elaborate on that? Okay, we've lost that line with her and we will be speaking to her shortly. Meanwhile, let's talk about the BJP reaction which has come in. Sagrika is also live with us. Sagrika, over to you. Take us through how the BJP is attacking the quote-unquote tukde mindset of the INDIA bloc. So, Amit Malviya of the Bharatiya Janata Party has now tweeted an old video of Salman Khurshid and he goes on to say, and I quote, Maryam Alam Khan has inherited her radicalism and bigotry from none other than Salman Khurshid, who in May 2016, speaking at the Watson Institute for International and Public Affairs in Brown University, Rhode Island, articulated how Congress is in its pursuit of political gains resorted to what he termed as clawing back the enlightened and thinking Muslims in urban areas to regain power. The strategy he suggested was instrumental in the formation of UPA 1 and UPA 2. The discourse around Muslims, Khurshid pointed out, shifted from being referred to as minorities to Muslims explicitly, marking a departure from earlier political rhetoric. During the course of his address, he makes several other claims around Congress's push for Muslim reservation at the expense of SCs, STs and OBCs, which didn't go through because of judicial intervention. Then the BJP goes on to say, so for the Congress, which is now the new Muslim League, minorities equals Muslims. Now read the Congress 2024 manifesto again. So they are taking this attack back to the Congress's manifesto, which the Bharatiya Janata Party in the Lok Sabha elections has called the Muslim League manifesto. Over to you, Meenakshi. Well, absolutely, Sagrika. So, appeasement charge is what the BJP is hurling towards, of course, the INDIA bloc over this statement. In fact, the BJP has mounted their attack on the opposition bloc and they have said, and I quote, be it Batla House encounter or 2611, INDIA bloc has always backed quote-unquote jihadis, yet another bid to polarize by the opposition. सलमान खुर्शीद की भतीजी इंडी अलायंस के सार्वजनिक सभा में कहती हैं कि मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है। मतलब पहले जिहादियों के साथ इंडी अलायंस कहा और अब जिहाद की करे इंडी अलायंस बात। ये तो दिखता है साफ साफ। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही बताया था कि कांग्रेस और उनके साथियों से, उनके मैनिफेस्टो से मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब तो मैनिफेस्टेशन में भी मुस्लिम लीग चीख चीख कर नजर आ रहा है। कभी बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए आंसू बहाना, कभी रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आतंकियों के साथ घुल मिल जाना, अफजल याकूब की पैरवी करना, चाहे वो 26/11 के जिहादी हो या और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के जिहादी हो, उनकी पैरवी करना, ये इनका चरित्र है। समाजवादी पार्टी ने तो जिहादियों को छुड़वाने की भी चेष्टा की थी, तो आज ये जिहादियों के साथ भी है और जिहाद की बात भी करते हैं। मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो एंड मुस्लिम लीग मैनिफेस्टेशन। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। All right, Pragya is joining us live on the broadcast. Pragya, you heard all those BJP reactions. It's very obvious that the BJP is targeting the INDIA bloc over these extremely provocative statements which have been made by Khurshid's niece. BJP, of course, mounting the attack, breaking up the Batla House encounter, speaking about the Congress's manifesto. Take us through really the war of words over these statements, first of all. Well, Meenakshi, when you use word jihad in political discourse, it has
has always that negative connotation, and BJP is playing on that as well. And they're saying this is not one-off statement by Mariam, but also, her relative Mr. Salman Khurshid had been using this same argument again and again. And this is what Congress is all about appeasement, politics of appeasement. And this is exactly what Salman Khurshid had said in Wharton when he was delivering an address in 2016. Amit Malviya of BJP has attacked Salman Khurshid and obviously his knees on appeasement politics, saying that Salman Khurshid used to say that when there was a word used as minority, no one used to have this word called Muslims because there was a negative connotation to it. And there was also an estimate that there could be a attack on if you use the word Muslims. But then there came a day when you started using Muslims as Muslims because they are 80% of the minorities in terms of political discourse, in terms of numbers, in terms of influence. They are greater when it comes to minorities, and that is why UPA 1 and UPA 2 had made a push to give more scholarship for Muslims. And in fact, he goes on to say that when we gave sub-quota from the OBC, there was a lot of hue and cry in Election Commission. They were saying that we were using religion for the sake of politics, and this was during UP election. So all of this has been put into context by BJP leaders, saying to show that Congress has always done a politics of appeasement. They are standing for the Muslims and Muslims alone. And this is absolutely. And you've put it succinctly, Pragya. As far as the BJP is concerned, they've gotten more ammunition in the run-up to polls. Stay with us. We also have Fakrul Hassan Chand of the SP, who's just joined us on the phone line. Afternoon, sir. Thank you for joining us on Times Now. I have one question to ask you, sir. Do you agree with these statements? Vote jihad, is it okay for leaders to make such provocative statements in the run-up to polls? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि उनका जो बयान है वो लंबा चौड़ा बयान है, वो बहुत कुछ कह रही है जिसको मैंने सुना। और वो किस दल की नेता है, किस पार्टी से जुड़ी, इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के पास अभी नहीं है। वो जहां तक जिहाद शब्द का सवाल है, तो जिहाद का मतलब होता है, जो अरबी शब्द है, संघर्ष करना या आंदोलन करना। अगर वो जनता से अपील कर रही है, देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से अपील कर रही है कि वोट देने जाए, वोट बढ़ाए, भाजपा की जन विरोधी सरकार के खिलाफ वो जाए, वोट करे, तब तो समाजवादी पार्टी सहमत है। लेकिन अगर वो कुछ और कहना चाहती थी, उनका कहना कुछ और है, तो इससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। Well, sir, let me just give you some perspective. पहली बात, जो वो कैंपेनिंग कर रही थी वो तो एसपी के ही कैंडिडेट के लिए कर रही थी, और दूसरी बात उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वोट जिहाद करना चाहिए। वो ये नहीं बोल रही है कि प्लीज आइए अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करिए। शी इज यूज्ड द वर्ड वोट जिहाद। आपको इसमें कुछ गलत नहीं दिखता है? नहीं, वो जिहाद का क्या मतलब है, आप बताइए। आप बताइए, जिहाद का क्या मतलब होता है? अरबी वर्ड है, अरबी शब्द है, जिहाद का मतलब क्या होता है? भाई, भाजपा की परिभाषा में जिहाद थोड़ी। आप अगर गूगल कीजिए जिहाद का शब्द क्या है, तो वो अरबी शब्द है जिहाद, और जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, आंदोलन करना। तो अगर वो, मैं फिर से कहता हूं कि अगर वो देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कहना चाहती है कि वोट जिहाद करो, वोट डालने आइए, वोट का इस्तेमाल कीजिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ और कहना चाहती थी, वो किसी और की तरफ इशारा करना चाहती है, ये आपको गलत नहीं लगता है? हुक्का पानी बंद कर देंगे अगर आप एक सर्टेन पार्टी के लिए वोट करेंगे, वोट जिहाद करिए। आपको इन स्टेटमेंट्स में कुछ प्रोवोकेटिव, कुछ गलत नहीं लग रहा है? बिकॉज भाजपा का कहना है ये हेट स्पीच है। देखिए, देश में संविधान है, और संविधान है, कानून है। अगर किसी ने कुछ गलत बोला होगा तो देश का कानून है, वो अपना कानून अपना काम करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो देश की जनता से अपील करती है कि 2 चरणों में कम मतदान हुआ है, आप मतदान करने आइए, मत का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी भी हैं, ही इज रिप्रेजेंटिंग द बीजेपी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज एसपी का कहना है कि क्या गलत कहा, जिहाद वर्ड ही तो बोला है, वोट जिहाद, इसमें क्या गलत है? वो एक संप्रदाय विशेष से जिहाद करने का आह्वान कर रही है। कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी हो गई है, जो 4% संप्रदाय के आधार पर अल्पसंख्यक को जो आरक्षण है वो देने की बात कर रही है, उनको दिया है, और ओबीसी एससी का आरक्षण काट के, और अब वो एक संप्रदाय विशेष से वोट जिहाद की बात कर रही है। यहाँ जनता वोट क्रांति कर रही है, और इनके वोट निकल नहीं रहे हैं विपक्ष के, और बीजेपी के पक्ष में एक पक्षी वोट पड़ रहे हैं। इससे इनकी घबराहट बढ़ी है। और प्रथम चरण, द्वितीय चरण में अगर देखें तो 100 से ऊपर सीटें भाजपा 2 ही चरण में प्राप्त कर चुकी है। ये इनका दर्द है।
इसके लिए कहीं फेक वीडियो निकालते हैं अमित शाह जी का, कहीं वो कहते हैं आरक्षण के संदर्भ में भाजपा को कहते हैं कि 400 आ गई तो आरक्षण हटा देंगे, झूठा प्रचार करके कि जनता की सहानुभूति। So you're saying it's a sign of their desperation, दिनेश शर्मा जी। हमारे साथ फखरुल चंद जी भी हैं, वो एसपी के हैं। I'm sure सर आपने सुना कि भाजपा का क्या कहना है। बीजेपी सेज ये एक हेट स्पीच है, INDI ये ब्लॉक अपीजमेंट कर रहा है, फियर मॉन्गर कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आदरणीय दिनेश शर्मा जी की मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या पिछड़ों को आरक्षण दिया 69,000 शिक्षक भर्ती में? क्या दिल्ली में पुलिस भर्ती हुई? क्या पिछड़ों को उनका हक अधिकार मिला? और ये समाजवादी पार्टी का आरोप नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा पत्र लिखा था उत्तर प्रदेश सरकार को। तो और आदरणीय दिनेश शर्मा जी शिक्षा मंत्री भी थे 2017 से 22 की सरकार में। तो आदरणीय दिनेश शर्मा जी को बताना चाहिए, भाजपा को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 बट आपको ये नहीं लगता है कि जब इस टाइप की स्टेटमेंट्स आती हैं, आप कंडेम करने से भी मना करते हैं, आप कहते हैं कि जिहाद वर्ड में क्या प्रॉब्लम है, वोट जिहाद में क्या प्रॉब्लम है, तो इससे बीजेपी को एटलीस्ट और एम्यूनिशन तो मिल रहा है आपको अटैक करने। अरे भाई एक बात बताइए, क्या भाजपा की परिभाषा से देश चलेगा या देश संविधान से चलेगा? मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, जिहाद का क्या मतलब होता है? जिहाद देखिए, जिहाद शब्द का क्या मतलब होता है पहले उसको समझना चाहिए। सर ये जिहाद शब्द इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेनिंग के टाइम पे जिहाद करिए, वोट जिहाद करिए, ये कैसे जस्टिफाइड है सर? भाई मैं कहता हूँ कि देश में संविधान है, देश में कानून है। अगर किसी ने कोई हेट स्पीच दी है और अगर किसी ने कुछ और कहने की कोशिश की अपने बयान के माध्यम से, तो कानून अपना काम करेगा, उस पे समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये जो आदरणीय दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ों के आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अधिकार हक नहीं है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता है। Point taken. Far as the SP is concerned, they do not want to at the moment condemn the statement by Mariam Alam Khan. They are saying, or at least as far as SP is concerned, they don't see anything wrong with the word vote jihad. BJP of course calling it hate speech.